RM Physics tutorials. From today onwards, we are going to start a very new series on this channel that will be proved very helpful. I hope that it will be proved that very helpful for the JEE and NEET aspirants, so that they can get a quick review of all the concepts that they have studied in a single chapter. After I finish every chapter, I will try to recapitulate all the important concepts and the formulae that have been discussed in this chapter, and I will show them in a mind map form. What are mind maps? Mind maps are those techniques to remember anything in a quick manner, so that all the links are connected in your brain and you can remember all the concepts in a quick and easy way. And it will be in a form of cupboard. Like you keep your clothes in cupboard, you will be able to store all the concepts of physics and the important formulas that you can directly apply in JEE and NEET numericals in your brain in such formats that are known as mind maps. So I will try to create a new playlist of videos where I will upload mind maps quick revision, which I like to call as Fastrack revision series. I like to call these as Fastrack revision because you can remember all the concepts in a fast and quick pace in your brain in a connected manner, so that we will discuss all the concepts. So without any further delay, let's start today's video. So the very first chapter where I am going to discuss about Fastrack revision, that I like to call as Fastrack revision, and that will be our first chapter. मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. पहले आप पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, get your concepts cleared, brush your concepts clearly, and then come to this video so that you can get the full benefit of this Fastrack series. So without any further delay, let's start with electric field and potential, the very first chapter of electrostatics which you face in your 12th physics syllabus. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का कंसेप्ट दिमाग में आता है, आपके दिमाग में पहले ही चार्ज का कंसेप्ट आ जाना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट्स विद चार्ज. सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज? लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट चार्ज. Charge is the most fundamental concept in electrostatics. So if I go with the basic definition, जो मैंने आपको मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में दिखाया था, बताया था आपको कि definition क्या होता है चार्ज का. So a charge is a quantity which when given on any body or any object, the body experiences a force. उसको हम लोग चार्ज कहते हैं. तो चार्ज जैसे दिमाग में है, चलिए कनेक्ट करके देखते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज कंजर्व्ड. द टोटल चार्ज इन एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड. ये दो बातें जैसे ही चार्ज के बारे में हम लोगों के दिमाग में आ गया, so we can try to recall that Q equals to NE. Q is the total charge in any system, N is the number of electrons and E is the charge on any electron. तो E का वैल्यू कितना होता है? The charge on any electron is written as 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, I think you can see this clearly. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge of an electron. तो आप इसके सामने एक नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, so you can write a negative sign. But if you try to write only the magnitude of charge, then it is 1.6 into 10 to the power minus 19. फंडामेंटल चीज आपको पता होना चाहिए. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is the mass of an electron. ये भी आपको पता चल गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग को दिमाग में क्या आ जाएगा? A very fundamental concept of electrostatics. पहला जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, या you guessed it right, that is Coulomb's law. Coulomb's law आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. तो Coulomb's law जैसे दिमाग में आया, you can see that Coulomb's law, the great physicist Coulomb gave us the formula of force of attraction or repulsion between two charges. Formula क्या होता है? K Q1 Q2 by R square. This is the formula, just like Newton's law of gravitation. यहाँ पे भी force का formula आ जाता है. Q1 is the magnitude of the first charge, Q2 is the magnitude of the second charge, R is the distance between the two charges. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. तो K का वैल्यू क्या होता है? K stands for 1 by 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is the permittivity of vacuum. That is why I am writing epsilon 0. Sorry, there may be some external noises from outside. I cannot help that. Just please try to bear with that. I don't think that it will create any big issue. So K equals to 1 by 4 pi epsilon 0. लेकिन epsilon 0 के जगह पे अगर कोई और मीडियम हुआ, सपोज एयर, वाटर या फिर ऑयल, विनेगर, एनी मीडियम, अगर दूसरा कोई मीडियम हुआ वैक्यूम के अलावा, तो आप वहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे. एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो
एप्सिलॉन 0 यहाँ पे वैक्यूम पे k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹ दैट इज द वैल्यू। ये फंडामेंटल बात है, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट we will try to understand a very fundamental concept of this chapter, and that is electric field. Let us try to understand electric field. Electric field का वैल्यू जैसे दिमाग में आया, हम लोगों के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? बिल्कुल आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। Electric field is a vector quantity. See, I have given an arrow over E. It is a vector quantity. So electric field is a vector quantity. It has a direction. Electric field जैसे दिमाग में आया, फॉर्मूला आ जाना चाहिए E = F/Q। क्यों? क्योंकि F = QE हम लोग लिखते हैं। सो द फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज दैट गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q is the charge and R² that gives us the electric field for any charge, point charge, that gives us the electric field. R is the distance, जिस डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, so that is this formula. So from here we can see that electric field is inversely proportional to R²। ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ से, inversely proportional to R² electric field. Now let us move on to the next concept, one derivation. The two important derivations I have done in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको डेरिवेशंस कराए थे, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ ये डेरिवेशंस, आप जाके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर वो डेरिवेशन आपने समझ लिया, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है डेरिवेशंस। बिल्कुल डेरिवेशंस पहले कीजिए, फिर फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको तभी याद रहेगा जब आपको डेरिवेशंस अच्छे से क्लियर है कंसेप्ट। सो व्हाट आर द डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग। आपको याद होगा, मैं डायग्राम जैसे बनाऊंगा आपको याद आ जाएगा अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, एक रिंग रहता था, रिंग के ऊपर कुछ चार्ज दिया रहता था, कुछ इस तरह से। आई थिंक यू कैन रिमेम्बर दैट। चार्ज दिया रहता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहता था लैम्डा कूलम पर मीटर। सो फ्रॉम हियर आई थिंक यू कैन रिमेम्बर द कंसेप्ट। उसके बाद ये था रिंग का एक्सिस फ्रॉम द सेंटर, और ये एक्स डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ रहता है। यहाँ से हम लोग एक लाइन को कनेक्ट करते थे P पॉइंट तक, इसको हम लोग P पॉइंट मान लेते थे, एंड द एक्स डिस्टेंस हियर वी ट्राई टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। इस P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते थे। सो दैट फॉर्मूला, आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज E = for this charged ring electric field equals to, I am directly writing the formula, that is xq, the distance x, this is x, okay, xq by 4 pi epsilon 0 into a² plus x² whole to the power 3/2। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है यहाँ से। आई थिंक यू कैन रिमेम्बर दिस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो बाकी एक और डेरिवेशन होता है, बहुत सारे डेरिवेशन हो सकते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बाकी डेरिवेशन भी आप कर पाएंगे अपने आप। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऊपर की तरफ लिखता हूँ, 1-2 पेजेस के अंदर आपका पूरा माइंड मैप खत्म, चैप्टर खत्म। चलिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे दिमाग में आया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज तक जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज तक जाता है। एंड ऑल्सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? आई कैन डिराइव द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो रीजन में है उसके ऊपर किसी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। दैट गिव्स, आई कैन सम अप एंड राइट एज tangent to electric, ELOF, electric lines of force, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। electric lines of force gives electric field, electric field मिल जाता है उससे। then we move on to another concept, ये आपको पता होना चाहिए, मैं नीचे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, कोई एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स? द डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड। क्यों रेडियली आउटवर्ड? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज व्हाट कैन बी द डायरेक्शन? द डायरेक्शन विल बी रेडियली इनवर्ड, रेडियली अंदर की तरफ जाएगा। दैट इज द फॉर द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किया है। आपको एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाना होगा। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। मैंने आपको दिखाया प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज गिव अ कमेंट डाउन, leave a comment below so that I can read your comments and I can upload videos as per your requirements. चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और कंसेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इलेक्ट्रिक potential energy, I am writing as electric PE in short form, electric potential energy. So that is given by you can calculate it by using this formula, Q1 Q2 by 1 by 4 pi epsilon 0 into 1 by r minus 1 by infinity. Why? Because I have brought one charge from infinity to a point whose position vector is r. अगर उस point का position vector r है, I think you can see this clearly. Let me adjust the camera. I think now you can see that 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 into 1 by r minus 1 by infinity. अब 1 by infinity का वैल्यू तो 0 हो जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर 1 by infinity का वैल्यू 0 है तो वहां से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ u r equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 into r। क्यों? क्योंकि 1 by 4 pi epsilon 0 का वैल्यू 0 हो चुका है, 1 by infinity का वैल्यू 0 हो चुका है, 1 by infinity। So from here now I will move on to electric potential और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रिलेशन भी निकालेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, आप थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। मैंने आपको डिस्कस किया है पूरे डिटेल में मेरे वीडियोस में, फिर भी आप देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय V and this is a scalar quantity. Electric potential scalar quantity होता है, it has no direction but the magnitude. Now what is electric potential? अगर मैं definition बताना चाहूँ then I can say clearly that electric potential, the work done in bringing a unit test positive charge from infinity up to a point that gives us the electric potential at that point. उस point पे electric potential हमको इस तरह से मिलता है। So I can write down, if I bring a charge from infinity to a point, then I can say that suppose यहाँ पे point A है, this is point A and this is point B। अगर मैंने एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया है, उसको A पॉइंट से B तक लेके गया हूँ मैं, then I can say that clearly that from A to B I can say that the potential difference will give us the VB minus VA, that is the potential at point B minus the potential at point A, final position minus initial position, that will give us the value that इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है UB माइनस UA, दैट इज द चेंज इन द एनर्जी एट B, एनर्जी एट A, UB माइनस UA डिवाइडेड बाय द चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज Q। दिस विल गिव अस द पोटेंशियल। सो आई कैन राइट डाउन दिस एज चेंज इन द एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन। व्हाई एक्सटर्नल वर्क? बिकॉज दिस इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। आप एक एक्सटर्नल फोर्स मान सकते हैं, दैट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सिस्टम के एक्सटर्नल एजेंट इज विद रेस्पेक्ट टू द सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी आर कंसीडरिंग। सो वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट और एनी एक्सटर्नल फोर्स यू कैन से इज इक्वल टू Q into delta V, that will give us the value from here, and this formula is very 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 important for your JEE and NEET exams, because you can solve with this formula you can solve many HC Verma questions, even some HC Verma questions you can solve using this formula, and you can use this formula directly. I will show you how you can use them. You can use this formula directly and I will show them in my upcoming videos. I will try to upload some question solving videos for each chapter. After I finish each chapter in there, I will discuss with you all the HC Verma questions and some good quality questions of JEE and NEET level, so that your concepts are crystal clear. So work done by external agent is equal to Q into change in the potential energy, that is denoted by delta V. So I can write that down as work done by external agent, W external, that is the work done by external agent, is equal to Q into VB minus VA। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे VB minus VA। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा U। तो आप देख सकते हैं मैंने शुरू से चार्ज से शुरू किया, फिर मैंने प्रॉपर्टीज बताया, फिर कूलम्स लॉ बताया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लाइंस ऑफ फोर्स, फिर पोटेंशियल। आई थिंक आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सारे कंसेप्ट को एक के बाद एक, मतलब कपबोर्ड की तरह आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया।
ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए बातें। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो रिलेशन बिटवीन, let me write that down here, relation between BW is the short form for between electric field and electric potential. I am writing in short form. Okay, just try to adjust with that relation between electric field and electric potential. So that will be given by, if I move any unit test positive charge from a point, let us denote from point 1 to point 2. point 1 से मैंने unit test positive charge उठा के मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, point 2 तक लेके जा रहा हूँ. So it will give us the potential difference like somewhat like this, V2 minus V1. It will give us this is equal to integration. Very important formula. Just try to see this very clearly. Notice all the changes. R1 point से लेके the position vector, that is R1 position vector for point 1 to position vector of point 2, that is R2. R1 से R2 तक लेके जा रहा हूँ. That is when the integration limits are from R1 to R2 minus of integration R1 to R2 electric field dot dr, differential of the position. This is a very important formula. I cannot say in words how much important is this. This is very important formula. उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं. What is that? I can write down. अगर मैं पोटेंशियल का डेफिनेशन यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या है? माइनस इन्फिनिटी से मैं कहाँ लेके आया हूँ? R तक. इन्फिनिटी से R पोजिशन तक लेके आया यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, E डॉट dr. This will give us the fundamental mathematical expression for electric potential. उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक और रिलेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. E, that is the electric field, is the minus partial derivative of potential with respect to the position. Partial derivative of potential with respect to the potential, with respect to the position. That will give us the electric field. और उसके सामने नेगेटिव साइन होगा. तो अगर मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखता हूँ तो Ex will be minus of del V by del X. Ey will be minus of del V by del Y. That will give us minus of del V by del Y along the Y axis. And from Ez we will get minus of del V by del Z along the Z axis. Okay, I think it is clear up to here. कोई भी confusion नहीं है आपको? I think so. So from here I think I have shown you what is the potential. Okay, another thing which I should have written here, sorry for that, I'm writing here the potential for any point charge Vp. I'm right. Okay, let us write down as only V. That will be 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by R. So you can see that potential is inversely proportional to R. आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. Electric field is inversely proportional to R square and potential is inversely proportional to R. Okay, I think it is clear up to here. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे. Let us proceed with equipotential surface. Okay, चलिए equipotential surface पढ़ते हैं. मैंने आपको ये सब पढ़ाया है पूरे डिटेल में, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं. आई एम जस्ट मेकिंग अ फास्ट ट्रैक रिविजन. पूरे वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कंसेप्ट्स. इक्विपोटेंशियल सरफेस, आई थिंक यू हैव heard about this. If you have seen my videos, आपको याद होगा. So I'll write down only one line. Equipotential, इससे हम लोग को पता चल रहा है इसका मतलब क्या है. कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल इक्वल हो हर एक पॉइंट पे, that is equipotential. Potential is same at all points on the surface. Equipotential surface मतलब potential is same at all points on the surface. That gives us the equipotential surface. I think it is clear. इसके बाद अभी हम लोग जो लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे और 2 पेजेस के अंदर आप देख सकेंगे कैसे खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर का सारे कंसेप्ट्स. आप ये नोट्स अपने साथ रख लीजिएगा. जैसे जैसे मैं कनेक्ट करके लिखते जा रहा हूँ अपनी अपने कॉपी में या फिर एक सेपरेट कॉपी बनाइए. एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक a separate copy. And if you do not want to make any separate copy, then you can again you can also try that loose sheet. You can make your notes in loose sheet and you can note that down and keep the loose sheets in a file, so that before few days are left, when you will have very few days left before your JEE and NEET examinations, you can refer to these pages and you will not have to go through your whole bunch of notes. You will just refer to these and you will attempt the questions, practice questions. Electric dipole.
आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अगर ये आप रख लेते हैं अपने पास। आपको जस्ट एक क्विक रिविजन करा देगा माइंड मैप के टेक्निक में, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस क्वेश्चन इन योर examinations for your practice questions at your home. Okay, now I am proceeding with electric dipole. Okay, from here I can write down that electric dipole moment, we know the formula very well, that is QD. Okay, QD क्या है? QD है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम उसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म को हटाना चाहूँ, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड दिखाना चाहूँ, आई कैन राइट डाउन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ P, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P। ओके, ये मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस ऑफ P, दैट इज QD। आई कैन राइट डाउन दिस। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से व्हाट इज द यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। डी मतलब मीटर, सो यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट विल बी कूलम मीटर विल बी द यूनिट। आई थिंक यू कैन सी कूलम मीटर विल बी द यूनिट। ओके, उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे द पॉइंट इलेक्ट्रिक किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको डिराइव करके दिखाया। आप चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएंगे पूरे डेरिवेशन डिटेल में। So we are trying to find out what will be the electric field and electric potential at any general point due to a short dipole. चलिए देखते हैं क्या होता है। ER, that will give us the radial component of the electric field. Radial component of the electric field will be 1 by 4 pi epsilon 0 into 2p cos theta by r cube। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब आपको पढ़ाया है पहले। आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे मैंने सारे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। एंड द थीटा कंपोनेंट E theta will be 1 by 4 pi epsilon 0 into क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब याद करने की कोशिश कीजिए, P sin theta by r cube। ये भी आपको याद होना चाहिए आपको। एंड फ्रॉम हियर कंबाइनिंग these two I can write down the net electric field. The net electric field will be 1 by 4 pi epsilon 0 into क्या हो जाएगा यहाँ पे, I think you can remember that P by r cube into 3 cos square theta plus 1, that will give us the net electric field due to a short dipole at any general point. अल्फा एक एंगल होता था, अल्फा कहाँ होता था एक एंगल? बिटवीन ER एंड E। रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता था उसका वैल्यू भी हम लोग को डिराइव करके मैंने आप लोगों को दिखाया था, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan थीटा। अब ये थीटा के वैल्यू के ऊपर भी कुछ डिपेंड करते हैं, चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे V। ओके, पोटेंशियल जो होता था ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, लेट अस ट्राई टू राइट दैट डाउन एज V इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0, फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, इनटू P cos theta as far as I can remember, yes that was P cos theta by what will be here, r cube और r square? yes r square। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में r cube था, यहाँ पे r square होना चाहिए। here I can write down as r square। okay, that was the potential। अभी अगर ये थीटा एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है, if theta is 0 डिग्री, then electric field cos नेट इलेक्ट्रिक फील्ड cos 0 1 3 plus 1 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2 kp by r cube। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल 2 kp by r cube ही होना चाहिए। और पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहाँ से? पोटेंशियल आ जाएगा हम लोगों के पास, दैट विल बी 1p, सो kp by r square आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल। ओके, और अगर ये थीटा एंगल 90 डिग्री पे रह गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल जाएगा E इक्वल्स टू cos ऑफ 90 डिग्री 0, so that will give us kp by r cube, and if theta is 0 degree and also potential for theta equals to 90 degree will be 0। okay, and now the very last concept in this chapter, that is torque। जब मैं इस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख देता हूँ, टॉर्क कब होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तभी हम लोग को टॉर्क मिलता था, आपको याद होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कंसेप्ट होता है, लेकिन वो अभी आपके 12th सिलेबस में नहीं है, दैट इज इन योर हायर फिजिक्स सिलेबस। फॉर नाउ लेट अस कंसीडर ओनली, फॉर द टाइम बीइंग लेट अस गो विद ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस। ओके, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस है तो टॉर्क क्या होता था डाइपोल के ऊपर? टॉर्क हो जाएगा आपके यहाँ से मिल जाएगा आपको T इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ टाउ, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे, that will be PE sin theta। okay, that will be PE sin theta।
अगेन आई कैन राइट दैट डाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो जाता था, ये जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को डाइपोल के ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी मिलता था। व्हाट वाज दैट? लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट यूजिंग दिस मेथड। वर्क डन इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, दैट विल गिव अस माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा, माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। आई थिंक यू कैन रिमेम्बर दिस। उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाता था यहाँ से, आई कैन फाइंड दैट आउट एज चेंज इन द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, दैट विल बी माइनस ऑफ डी डब्ल्यू विल बी पीई। मैंने डिराइव करके दिखाया मेरे डिटेल्ड वीडियो में, मैं जस्ट यहाँ पे जिस्ट लिख रहा हूँ, जो जो एक्सप्रेशन आपके काम में आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डू डी थीटा। ओके, फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन यू थीटा। अगर 90 डिग्री पोजीशन से, अगर थीटा पोजीशन से 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ओके 90 डिग्री पे डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं 90 डिग्री से डाइपोल को हटा के किसी थीटा एंगल पे लेके आऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वहाँ पे द चेंज इन एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन, लिमिट्स इंटीग्रेशन का 90 डिग्री से थीटा तक, ई पीई साइन थीटा डी थीटा। उसके बाद हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाता था, हम लोग को यहाँ से मिल जाता था माइनस ऑफ पी डॉट ई कॉस थीटा। ओके, पी डॉट ई कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी डॉट प्रोडक्ट विथ ई, क्योंकि भी कॉस थीटा कंपोनेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको पूरा रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। जस्ट 2 पेजेस के अंदर मैंने खत्म कर दिया पूरा चैप्टर, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। पहले मैंने यहाँ से चार्ज लिखा, फिर मैं चार्ज के प्रॉपर्टीज पे गया, फिर मैंने कूलम्स लॉ डिस्कस किया, आफ्टर दैट आई डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को मैंने कनेक्ट किया, डेरिवेशंस मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कौन से डेरिवेशंस होते हैं, फिर मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिखा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बाद मैं चला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने डिस्कस किया। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric lines of force, electric potential energy, then electric potential, and then relation between electric field and electric potential, and last but not the least that is electric dipole। और उसके बाद electric dipole के ऊपर जो torque exert होता है when it is kept in an uniform electric field। So I think it is clear till here। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then please give a thumbs up and also share it with as many students as possible, and try to share with your friends, your family members. Share this video with the students whom you know are preparing for JEE and NEET exams, because these videos will be very helpful, I hope that। And also don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसी चैप्टर के ऊपर और मैं दिखाऊंगा आपको कि आप कैसे इन फॉर्मूले को और कंसेप्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।